So hello dear students, so in this video we are going to see the solution of physics paper from ReNIT 2026. Okay, so let's see the first question, that is a particle of mass capital M moves along a horizontal axis from x equal to 0 to x equal to L. That means if we draw, so let us consider this mass is M. So initially it is present at x equal to 0, that means at origin, and then this box needs to move to a position x equal to L. This will be the final position. Okay, now what is given? The coefficient of kinetic friction. Achha, given that coefficient of kinetic friction is mu k and it is depending on x. So means क्या, जब बॉडी इनिशियल से फाइनल मूव करेगा, सो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या x के साथ वेरी करेगा. इट इज डिपेंडिंग, सो इट इज गिवन एज म्यू नॉट माइनस अल्फा इनटू x. ओके ओके, सो पूछा क्या है एंड गिवन क्या है, म्यू नॉट एंड म्यू नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट. अच्छा, एंड सो दैट म्यू के एल. अच्छा, ये एक इक्वेशन गिवन है ना, तो ये हम लोग कॉल कर लेते हैं. ठीक है, सो सी कि गिवन म्यू के एल इक्वल टू हाउ मच 0. दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन अगर x की जगह हम लोग अगर l पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो. सो म्यू नॉट माइनस अल्फा इंटू एल, दिस विल बी 0. यस, जस्ट x की जगह क्या पुट करो तुम लोग, l पुट करो, बिकॉज इस ब्रैकेट के अंदर l है ना, तो जहां जहां पे भी x होगा इस इक्वेशन में l पुट करो तो आंसर मीन्स कुछ तो आएगा. सो म्यू नॉट we will get alpha L, and that's why, so from here we will calculate alpha equal to mu naught by L. So this will require, okay, so we will use that in later. So alpha equal to mu naught by L, this is how we have done. So let's keep this value here. So alpha equal to mu naught by L. Now what we need to calculate, that the work done by frictional force during the motion is n mu naught mgl. Then find the value of n. अच्छा, so इस क्वेश्चन में बहुत ही क्या पूछा है हम लोगों को, वर्क डन पूछा है. यस, सो एक काम कर लेते, जब भी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरिंग है, मीन्स इट इज नॉट कांस्टेंट, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक रैंडम पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, कोई एक रैंडम पोजीशन मान लेते हैं कि दिस इज डिस्टेंस x, और इस डिस्टेंस x पे अगर मैं बॉक्स मार्क्स m को रखूं, और उसके बाद इफ वी डिस्प्लेस द बॉडी बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है ना, dx कहाँ पे होगा, राइट साइड में, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन इज नथिंग बट opposition to motion, so friction will be the left side, so this is fk. Yes, so then work done, therefore work done by frictional force क्या होगा, dw is nothing but force dot displacement factor. Yes, so dw will be nothing but fk, frictional force, displacement, and cos. What will be the angle between frictional force and displacement? Frictional force is in the left side and displacement is in the right side, so cos 180 degree. Okay, so dw equal to minus fk dx, क्योंकि cos 180 degree कितना होता है, -1. Next, now dw equal to minus, now what is the value of frictional force, kinetic friction? This kinetic friction can be written as coefficient of kinetic friction into normal reaction. Yes or no? Yes, coefficient of kinetic friction is mu k. Now given that this coefficient of kinetic friction is nothing but mu naught minus alpha into x, this is given. Okay, and what is normal reaction here, कि बॉडी का मास अगर m है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, सो ये मान लेते वेट mg, तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा. दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम mg into dx. This is the small work done. Okay, so this is the small work done by frictional force. Yes, dw आ गया. So हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा टोटल वर्क डन आ जाएगा. ठीक है, सो वो कैसे करेंगे, सो वी नीड टू डू द इंटीग्रेशन. लेट मी इरेज दैट पार्ट. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, इंटीग्रेटिंग dw इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस म्यू नॉट माइनस अल्फा x mg dx. यस, ओके, सो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन dw का इंटीग्रेशन w. एंड नाउ सी दिस mg पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो हम लोग लिख सकते हैं माइनस mg
म्यू नॉट इंटीग्रेशन dx, ये पार्ट रहेगा फर्स्ट पार्ट में, एंड देन दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, एंड जो भी कांस्टेंट जितना भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा mg इंटीग्रेशन के अंदर x dx. ओके, एंड पुट द प्रॉपर लिमिट सिंस द बॉडी वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, सो लिमिट क्या होगा, लिमिट विल बी x इक्वल टू 0 टू l, यहाँ पे भी 0 टू l. जस्ट डू द इंटीग्रेशन, सो w इक्वल टू माइनस mg म्यू नॉट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन x है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, प्लस अल्फा mg, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज l, जस्ट पुट द लिमिट्स, तो क्या होगा w इक्वल टू माइनस mg म्यू नॉट. सो अपर लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट क्या है x की जगह l आएगा और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, सो l माइनस 0 विल बी जस्ट l. नेक्स्ट प्लस अल्फा mg, नेक्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा l स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर बाय 2, दैट मींस जस्ट l स्क्वायर बाय 2 होगा. यस, so till now we got the expression of work done like this. Next part C, we have calculated the value of alpha. अल्फा का वैल्यू कितना है, इस इक्वेशन से अल्फा का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट बाय l, सो म्यू नॉट बाय l mg l स्क्वायर बाय 2. फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस आवर वर्क डन विल बिकम w विल बी नथिंग बट माइनस mg म्यू नॉट l प्लस ये हो जाएगा mg म्यू नॉट l बाई 2. सो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे और टेक द एलसीएम, यू विल गेट mg म्यू नॉट l बाई 2. ठीक है, और इन द क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो वर्क डन है ना, द वर्क डन इज गिवन एज n म्यू नॉट mgl. तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो वर्क डन का वैल्यू कितना है, n म्यू नॉट mgl. So comparing the both sides, what you can get, mu naught mgl, mu naught mgl is there. So n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा half. So comparing this, we got the value of n is half. Okay, so option 4 is the correct answer. ठीक है, so ये थोड़ा सा lengthy question था, but easy, very easy question. Okay, let's see the next question. The mean free path of a molecule in ideal gas A is half that of the another ideal gas. अच्छा, we know that the mean free path lambda is nothing but 1 by lambda is nothing but 1 by root over 2 pi d square into 1 by n. This is the mean free path. ठीक है ना, lambda is the mean free path, d is the diameter, d is the diameter. Yes, okay, and n is the number density. Yes, now according to question, what is given, and we can see from this formula one, we can see that lambda is proportional to 1 by n d square. Yes, this is proportional. Okay, next यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से आइडियल गैस है A एंड B है, तो हम लोग अगर लैम्डा A बाय लैम्डा B लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, होगा NB dB स्क्वायर डिवाइडेड बाय NA dA स्क्वायर. यस, ओके, NB dB स्क्वायर डिवाइडेड बाय NA dA स्क्वायर. दिस विल बी लैम्डा A बाय लैम्डा B. ओके, नेक्स्ट according to question क्या क्या given है, the diameter of spherical molecules of A is twice, means according to question क्या given है कि dA is nothing but 2 dB, this is given, and another thing is given, the mean free path of a molecule in an ideal gas. अच्छा, and means lambda A is given as lambda B by 2. These two things are given. Okay, so we can apply this two things. So lambda A क्या होगा, lambda B by 2, और lambda A को as it is रखो तो lambda B का वैल्यू इस जगह से क्या आ जाएगा, lambda B will be 2 lambda A. Yes, okay, next NB as it is होगा, NB dB as it is रखो. Now NA, and what is the value of DA? DA का वैल्यू क्या है, DA is nothing but 2 dB, so 2 dB का whole square. So यहाँ से क्या हो जाएगा, this lambda A, lambda will be cancelled and dB square will be cancelled. क्या रह जाएगा, सो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रहेगा हाफ, राइट साइड में रहेगा NB बाई NA इंटू
ये जो नीचे 2 स्क्वायर था ना उसका क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके सो हमको पूछा कि अभी जस्ट इसको जस्ट सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिवाइड है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2। सो लेफ्ट साइड में आएगा 2 इक्वल टू NB बाई NA एंड फ्रॉम हियर NB इक्वल टू 2 NA, NB इक्वल टू 2 NA, NB इक्वल टू 2 NA। अच्छा इट इज नॉट गिवन, देन राइट NA इक्वल टू क्या होगा, NA इक्वल टू NB बाई 2 और हाफ ऑफ NB। सो ऑप्शन 4 is the correct answer. Yes, easy, very easy. Next, question number 3. That is, two identical inductors are connected. Different configuration P, Q, where the time being current is there. Okay. The induced EMF between the points A and B for configuration P is EP, and for configuration Q is EQ. Then the ratio of EP by EQ is how much? अच्छा. क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी। अच्छा एक चीज है ना कि वी कैन सी द टू इंडक्टर्स आर देयर एंड दे आर केप्ट इन सीरीज, और सीरीज में क्या होता है करंट सेम होता है, तो जो भी करंट आई फ्लो रहा है दैट विल फ्लो इक्वली। यस, जितना करंट आई टी आ रहा है वो सेम करंट पास होगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ईपी, या फिर ऐसे लिखो फॉर configuration P, for configuration P जो भी induced EMF होता है ना, so EP can be written as L di by dt, L di by dt। हम लोग मान लेते हैं कि इसका वैल्यू L है, इसका वैल्यू L है, क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल इंडक्टर्स, सो उसका इंडक्टेंस भी क्या होगा आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो इसको L मान लिया तो इसको भी L मान लिया। एंड हमको A और B पॉइंट के बीच में पूछा है इसका इंडक्टेंस कितना L एंड करंट कितना फ्लो रहा है I, सो EP विल बी और एप्सिलॉन P विल बी L di by dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नेक्स्ट सी इन द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन Q, पहले तो ना इसको A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में फाइंड करना है, तो एक काम करो कि A और B पॉइंट के बीच में अभी दो इंडक्टर्स हैं बट दे आर इन पैरेलल, सो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाएंगे सो Q का, तो दैट विल बी नथिंग बट लाइक दिस, सो दिस विल बी the equivalent diagram. Okay, this will be the equivalent diagram. This will be L equivalent and this point will be A and this point will be B. कितना करंट जाएगा, सेम करंट ID जाएगा। Now L equivalent, if two inductors are in parallel, the inductors can be written as multiplication by addition. Yes, क्या होगा L into L divided by L plus L. If you calculate, you will get L by 2. So equivalent inductors will become L by 2. Now A और B point के बीच में जो भी induced EMF होगा, that can be written as EQ is nothing but inductance कितना है L equivalent, okay, current कितना है I, so इसीलिए di by dt। so now EQ equal to कितना आएगा L equivalent L by 2 di by dt, so this is nothing but EQ, equation number 2। now अभी काम करना है एक कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो तो क्या होगा, therefore इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या होगा, EP by EQ रहेगा। सो ये di by dt कैंसिल हो जाएगा, LL कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 1 by 2, दैट मींस यू विल गेट EP by EQ इक्वल टू 2। सो आंसर विल बी 2। यस, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यस, इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, फॉर साउंड वेव्स if the number of notes for fifth harmonic of an open-ended pipe is n, and that for ninth harmonic of same pipe with one of its end closed। now see यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि for open-ended pipe, ठीक है, for open-ended pipe number of नोट क्या होगा, नंबर ऑफ नोट इज नथिंग बट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, ओके, और नथिंग बट नंबर ऑफ ओवरटोन प्लस 1। दिस इज फॉर ओपन एंडेड पाइप, एंड फॉर क्लोज्ड एंडेड पाइप नंबर ऑफ number of note, that is nothing but number of overtone plus 1। formula is nothing but दोनों की केस में formula same है, number of overtone plus 1 and number of overtone plus 1। but in case of
क्लोज्ड पाइप, इन केस ऑफ क्लोज एंडेड पाइप क्या होता है, नंबर ऑफ हार्मोनिक क्या होता है, 2 टाइम्स नंबर ऑफ ओवरटोन, 2 टाइम्स नंबर ऑफ ओवरटोन प्लस 1. दिस इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ ओपन एंडेड पाइप. हार्मोनिक और ओवरटोन में रिलेशन है. अभी देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है. कि फॉर साउंड वेव्स इफ द नंबर ऑफ नोट्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप. अच्छा, यहाँ पे हार्मोनिक कितना गिवन है, यहाँ पे हार्मोनिक गिवन है फिफ्थ हार्मोनिक. सो यस, फिफ्थ हार्मोनिक इज गिवन. सो एंड उसको हम लोगों ने क्वेश्चन में गिवन है दैट इज एम, दैट इज n is nothing but directly 5 because for open ended pipe number of node is nothing but number of harmonics. तो ये directly given है, so ये equal to n equal to 5 आ गया. Next, see for same pipe but one end is closed, उसके लिए ठीक है ना, for one end closed pipe. so उसके लिए so यहाँ पे क्या given है कि 9th हार्मोनिक, कितना हार्मोनिक है, 9th हार्मोनिक. सो ये 9th गिवन है. ओके, सो पहले तो ओवरटोन कैलकुलेट करो. सो 2 इंटू ओवरटोन प्लस 1. सो यहाँ से ओवरटोन कितना आएगा, नंबर ऑफ ओवरटोन विल बी, सो 9 minus 1 will be 8, 8 divided by 2 will be 4. So overtone will be 4 and that's why number of node will be 4 plus 1, that is 5. And in this question that is taken as m. So m का वैल्यू भी 5, n का वैल्यू भी 5. हमको पूछा है n divided by m, that is 5 by 5, answer will be 1. So option 3 is the correct answer. Yes. Next, question number 5, that is consider a long solenoid of length L, radius R, if the n is the number of turns per unit length, mu naught is the permeability of inductance. अच्छा, for a solenoid the inductance can be written as inductance L equal to mu naught n square A into L. Mu naught is the permeability of magnetic permeability of free space, and is the number of turns per unit length. A is the area of cross section of the solenoid, and L is the length of the solenoid. Okay, now if the area is circular, that means L equal to mu naught n square, area will be pi r square into L. Mu naught n square pi r square into L. So option कौन सा दिख रहा है, option A. Option A is the correct answer. Next, question number 6. A particle moving along straight line whose position is given as see s of t, whose position s of t is given as alpha t square minus beta t plus gamma. Yes, and the value of alpha, beta and gamma is also given. So directly put करो, s equal to क्या होगा, alpha is nothing but 1 given है, so directly t square हो जाएगा. बीटा का वैल्यू कितना given है, 6, that is 6 into t and plus gamma is given as 5. So this is the position. Now what they ask, the average speed of the particle in t equal to 0 to t equal to 6 seconds. अच्छा, so what is the initial time, t1 is 0 second, and what is the final time, t2 is 6 second. Okay, so हम लोग एक काम करते हैं कि उसका पोजीशन फाइंड कर लेते हैं. इनिशियल पोजीशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे इनिशियल पोजीशन. इफ यू पुट द इनिशियल टाइम इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन, देन यू विल गेट द इनिशियल पोजीशन. दैट मींस t का वैल्यू कितना है, इनिशियल टाइम का वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, आ जाएगा. दैट मींस s1 will be 0 square minus 6 into 0 plus 5, you will get 5. Next, what is the final position, s2, फाइनल टाइम 6 है, 6 यहाँ पे पुट करो t की जगह, तो आ जाएगा कितना आएगा, 6 स्क्वायर माइनस 6 into 6 plus 5, that is also 5. Okay, so यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इनिशियल टाइम t1 इक्वल टू 0 पे वो पोजीशन कहाँ पे है, 5 पे है, एंड फाइनल टाइम t2 पे भी वो 5 पे है. दैट मीन्स ये तो नहीं है कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये तो ऐसा हम लोग, कोई लोग बोलेगा कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, दैट मीन्स समवन विल से दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग, बट ये ऐसा नहीं है क्योंकि पोजीशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम ना. सो पॉइंट मींस बॉडी इज मूविंग, बट क्या हो रहा है, वो रिटर्न होके सेम पोजीशन में आ रहा है. दैट मीन्स द बॉडी इज टेकिंग सम टर्न. ओके, तो एक काम करते, पहले इसका ग्राफ बनाते, ठीक है. सो लेट अस मेक द ग्राफ ऑफ दिस बॉडी. सो मान लेते हैं कि द बॉडी, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है, दिस इज ऑरिजिन s इक्वल टू 0, ठीक है, s इक्वल टू 0, दिस इज s इक्वल टू 5. सो इनिशियली बॉडी कहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे इनिशियली बॉडी वाज एट दिस पोजीशन 5, ठीक है, और फाइनली भी t इक्वल टू 6 पे बॉडी इस पोजीशन में आ गया सेम पॉइंट में. बट क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिटी है आइदर बॉडी गोस इन द राइट डायरेक्शन एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, और द बॉडी मे गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन एंड कम्स टू द सेम पॉइंट. दैट्स व्हाई इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर बिकमिंग इक्वल. बट तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी ने
किसी एक पॉइंट में टार्न लिया, तो जब टार्न लेते हैं, मान लेते हैं कि बॉडी इस पॉइंट में टार्न लिया, तो उसमें क्या होगा, वेलोसिटी बिकम्स जीरो। सो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन से हम लोग पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, दैट इज 2t - 6, और जहां पे टार्न लेगा ये वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। सो इफ यू कैलकुलेट t इक्वल टू 3 सेकंड, अच्छा 3 सेकंड में बॉडी टार्न लिया, अच्छा 3 सेकंड में अगर टार्न लिया, सो उस पॉइंट में वो कौन सा पोजीशन में था वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, इस पोजीशन का इक्वेशन में तुम अगर 3 सेकंड पुट करो तो तुम्हारा वो वाला पोजीशन आ जाएगा। देयरफॉर s at 3 सेकंड, s3 लिखता हूं मैं उसको, क्या होगा 3 स्क्वायर - 6 × 3 + 5, तो इसको कैलकुलेट करोगे ना, s3 इक्वल टू 9 - 18 - 9 + 5 विल बी -4। अच्छा, सो बॉडी कहां पे था, बॉडी, अच्छा मैं अगर करेक्टली ग्राफ बनाऊंगा, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, कि दिस इज s इक्वल टू 5, ओके। इनिशियली बॉडी t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, ओके। नेक्स्ट let this to be origin s equal to 0 and this is s equal to -4। so बॉडी क्या किया, बॉडी ने t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, s इक्वल टू -4 गया एंड देन रिटर्न हो गए t इक्वल टू 6 सेकंड में वो सेम पॉइंट पे आ गया, और जहां टर्न लिया था s इक्वल टू -4 में, वहां पे t इक्वल टू 3 था। यस, सो इस केस में पूछा है कि टोटल एवरेज स्पीड और टोटल स्पीड। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस विल बी नथिंग बट यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर 4, और यहां से यहां तक कितना 5, तो टोटल विल बी 4 + 9। सो ये 4 + 5 टोटल 9 हो जाएगा, एंड दिस 9 एंड दिस 9, बिकॉज वो रिटर्न भी हो ना, जाने में 9 ट्रेवल किया और आने में भी 9, सो टोटल 18। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 18, ओके। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 18, yes, total distance will be 18। okay, so total distance, ये समझ में आ रहा है ना, इजी प्रॉब्लम है, जस्ट थोड़ा सा ग्राफ बनाना है। टोटल डिस्टेंस will be 9 + 9 will be 18 meter, 18 meter। therefore average speed is nothing but total distance divided by total time। total distance is 18, what is the total time, 0 to 6 is total 6 second, okay। so if you calculate you will get 3 meter per second, answer 3 will be the correct answer, okay। very easy question। next question, consider the following nuclear reaction। the masses are given, so the q value, अच्छा we know that in a nuclear reaction the value of q is nothing but क्या होगा, m initial minus m final into c square, और यहाँ पे m initial क्या है, this is the mass of reactant, okay, reactants, and this is the mass of products, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट करो, सो क्या होगा, रिएक्टेंट में तो सिर्फ एक ही है, यूरेनियम है, दैट इज मास कितना गिवन है यूरेनियम का, 238.050, दिस इज द रिएक्टेंट, एंड प्रोडक्ट में 2 है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, दिस इज 234.043 प्लस हीलियम का मास कितना गिवन है, 4.003, okay, into c square, yes। अच्छा, this masses are given in what, these masses are given in amu और u, तो q कितना होगा, q will be nothing but this thing, this bracket, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, into u। अच्छा, now what is the value of u, 1 atomic unit is given as how much, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c स्क्वायर, ठीक है, और बाहर भी क्या है, c स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पे ये मास किसमें गिवन था, ये मास गिवन था u में, ठीक है ना, और 1 u का वैल्यू ये गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये c स्क्वायर, दिस c स्क्वायर विल बी कैंसल्ड एंड द आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ यू कैलकुलेट you will get 3.726 mega electron volt, and that is nothing but 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमको आंसर किस में चाहिए, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, कि a beam of light falls on a metal surface such that photoelectrons are generated if power of the light source starts to decrease linearly, power decrease हो रहा है टाइम के साथ साथ, then क्या होगा, then the photocurrent I and the magnitude of stopping potential with time क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। now see we know that कि number of photons
नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय द सोर्स, पर सेकेंड बाय द सोर्स, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एन, एंड दैट कैन बी रिटन एज पावर, दिस इज दैट कैन बी रिटन एज पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, यस। सो एन कैन बी रिटन एज, पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैन बी रिटन एज एच बाय लैम्डा, यस और नो, एच बाय लैम्डा। तो फ्रॉम हियर सो एन इक्वल टू क्या होगा, पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच, यस, पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। एंड हाँ ये तो हो जाएगा, और इस एनर्जी ऑफ फोटोन वी कैन राइट इन अनदर फॉर्म आल्सो, वी कैन राइट इन एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज एच न्यू, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज एच न्यू, सो फ्रॉम हियर सो पावर कैन बी रिटन एज एन एच न्यू, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ पावर, यस। नाउ सी यहाँ तक आ गया ना कि पावर इज नथिंग बट एन इंटू एच न्यू। नाउ सी यहाँ पे लाइट सोर्स तो सेम है तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये वाला कंप्लीट थिंग क्या है, ये वाला कंप्लीट थिंग कांस्टेंट है। सो अभी पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द एन, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस, यस। तो पावर अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पावर अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पावर, इफ पावर डिक्रीजेस देन क्या होगा, एन भी डिक्रीज होगा, मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स will also decrease and that's why number of photo electrons will decrease and hence number of photo electrons अगर decrease होगा तो क्या होगा, current decrease होगा, so current will decrease, so with time current क्या होगा, decrease होगा। so कौन सा ग्राफ में current decrease हो रहा है, current is decreasing in the graph number, हाँ current अभी decrease हो रहा है कौन सा, 1 और 2 में decrease हो रहा है, ठीक है। so 1 और 2 में decrease हो रहा है तो 1 और 2 में से कोई आंसर होगा, and then we need to see the stopping potential, okay, we need to see the stopping potential. We know that the equation of stopping potential is V naught equal to hc by E into 1 by lambda minus phi by E. This is the equation of stopping potential. Since यहाँ पे light source same है तो means frequency constant, that's why wavelength is constant, hc by E this is already a constant and for a particular metal phi is constant so E is constant. so यहाँ पे since light का frequency change नहीं हो रहा है, that's why कि ये stopping potential भी क्या होगा, stopping potential भी same रहेगा, although power decrease हो रहा है, power decrease होने से number of photo electrons decrease हो रहा है तो current decrease हो रहा है, but वो stopping potential को कोई effect नहीं करेगा, that's why this stopping potential will be constant. सो ऑप्शन कौन सा होगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड लिया तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बट एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, नेगेटिव होता है, यस। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया, मॉड लिया, तो इसलिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर पी क्यू एस, इस सब कैपेसिटर सबका कैपेसिटेंस कितना है, सी गिवन है, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। अच्छा, इस पूरा कॉम्बिनेशन को बैटरी वोल्टेज वी से कनेक्ट किया। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पी एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज यूपी यूटी, ओके, देन द रेशियो ऑफ यूपी बाई टी। अच्छा सी, एक चीज देखो यहाँ पे, पहले ना हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट, इफ टू कैपेसिटर्स, सबका वैल्यू क्या है, सी है, सी है, इफ टू कैपेसिटर आर इन सीरीज, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि C1, तो इसको सीरीज में होता है तो वो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो क्या होगा, C इंटू सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी, दैट विल बी C/2। दैट मीन्स यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा C/2 एंड मीन्स ये P और Q रिप्लेस हो गया क्या, एक सिंगल कैपेसिटर C/2 से रिप्लेस होगा एंड उसके नीचे और एक C है, सो दिस इज C, दिस इज C/2। तो इसको अभी क्या करो, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन कैन बी रिटन एज C प्लस C/2, पैरेलल में ऐड हो जाता है, तो इसको कैलकुलेट करोगे 3C/2 आएगा, तो C इक्विवेलेंट वी गॉट 3C/2, यस, ओके। नेक्स्ट, पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन रिप्लेस द होल कॉम्बिनेशन बाय C इक्विवेलेंट एंड दैट इज 3C/2, और उसमें कितना वोल्टेज कनेक्ट है, V, देयरफॉर U टोटल कैन बी रिटन एज हाफ, U कैन बी रिटन एज हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर, दैट मींस हाफ C इक्विवेलेंट कितना है, 3C/2 into V square, so this is our UT we got, okay, UT we got, total energy stored in this combination we got, but हमको UP भी कैलकुलेट करनी है। UP मींस क्या, ये जो इस कैपेसिटर में ये जो P वाला कैपेसिटेंस है ना, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर है वो है UP, वो कैसे कैलकुलेट करें। सी this branch and this branch are connected in parallel and they are
कनेक्टेड टू ए सेम वोल्टेज सोर्स भी, और हमको पता है पैरेलल में क्या होता है, सेम वोल्टेज होता है। सो अगर सेम वोल्टेज होगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, V वोल्ट आएगा। यस अच्छा, अगर दो इक्वल कैपेसिटर से, तो हमको पता है इन दिस सी इस P एंड Q बोथ कैपेसिटर्स आर केप्ट इन सीरीज, और सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज का डिवीजन होता है। अगर इक्वल कैपेसिटर है तो इक्वल वोल्टेज होगा, मींस V/2 यहाँ पे आएगा, V/2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, वोल्टेज विल बी V/2। सो दैट्स व्हाई UP आई कैन राइट हाफ, P में कैपेसिटेंस कितना है C, एंड व्हाट इज द वोल्टेज V/2, तो V/2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे ना, सो कितना आएगा, हाफ C V²/4। सो दिस इज UP एंड दिस इज UT। जस्ट अभी कैलकुलेट करो जो भी हमको पूछा है कि दैट इज UP/UT, इसको जस्ट कैलकुलेट करो कितना होगा, हाफ C V²/4 डिवाइडेड बाय हाफ 3C/2 V²। तो कुछ तो कैंसिल होगा, तो ये हाफ कैंसिल हो गया, C V² कैंसिल हो गया। तो इसको अगर अच्छे से कैलकुलेट करोगे ना, यू विल गेट 1/6, UP/UT will be 1/6, so answer will be option number 4. Okay, next let's see the next question, that is कि water flows in a streamline motion, this is given, the pressure difference of water between P and Q is, means अच्छा कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, where will be the most pressure, ठीक है, P और Q में देखो, सी there are 2 points P and Q, so ये जो भी गिवन है, pressure at P minus pressure at Q will be given as 15 Newton per meter square, this is given। next और क्या गिवन है, the area of cross section of P, means area at P is 40 centimeter square and area at point Q is 20 centimeter square respectively। okay, then the rate of flow of water through the pipe is, अच्छा रेट पूछा है, रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट इज नथिंग बट प्रेशर, रेट इज नथिंग बट प्रेशर, क्या Q इक्वल टू एरिया इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, बट वेलोसिटी नहीं पता ना, सो हम लोग एक काम कर लेते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो यू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट P एंड Q, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो क्या होगा, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो एट A विल बी सेम एज रेट ऑफ फ्लो एट पॉइंट Q एंड एट पॉइंट P, दोनों का सेम होगा, AP VP इक्वल टू AQ VQ। ओके, नाउ AP इज गिवन एज 40, VP हम लोग मान लिया, AQ गिवन है 20 एंड VQ ये हम लोग मान लिया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, सो यहाँ से आएगा 2VP इक्वल टू VQ, मीन्स VQ का वैल्यू 2VP आएगा। सो इसको हम लोग अच्छे से रख लेते हैं। सो VP इक्वल टू कितना आ गया, सो VP इक्वल टू 2VP इक्वल टू Q आ गया, ये हो गया। एंड देन अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन एट P एंड Q एट द सेम हाइट पे अगर अप्लाई करोगे ना, तो जो रो GH वाला टर्म आता है वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वो सेम हाइट पे हम लोग अप्लाई किया। सो यूजिंग बर्नौली इक्वेशन क्या होगा, दैट इज प्रेशर एट पॉइंट P प्लस हाफ रो VP स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट Q प्लस हाफ रो VQ स्क्वायर। सो PP माइनस PQ, PQ का हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आया, और ये हाफ रो VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज कर ले। नेक्स्ट PP माइनस PQ कितना गिवन है, प्रेशर डिफरेंस इज गिवन एज 15, ओके, हाफ रो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड VQ का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2VP लिख सकते हैं, यस फ्रॉम हियर। सो फ्रॉम हियर हम लोग 2VP लिख सकते हैं, तो 2VP का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4VP स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर दैट विल बी 3VP स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो VP कितना आ जाएगा, VP इज नथिंग बट VP विल बी नथिंग बट कितना आएगा, दिस इज कैलकुलेट करेंगे 1/10 मीटर पर सेकेंड। बट हमको क्वेश्चन में जो भी चीज पूछा है वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पूछा है, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 10 क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, नीचे 10 है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, VP आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वेलोसिटी एट पॉइंट P कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यस। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन वी गॉट VP is 10 centimeter per second. Therefore, हमको फ्लो पूछा है, फ्लो इज ऑलवेज सेम, सो हम लोग P पॉइंट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, AP इंटू VP
AP is given as 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड VP कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. That's how we got 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. सो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इजी था. नेक्स्ट. अच्छा, इसमें एक करंट I नॉट फ्लोस थ्रू ए मेटेलिक सर्कुलर लूप. A current I naught flows through a metallic circular loop of radius r as shown in the figure. The resistance of the segment अच्छा, so ABC का जितना भी रेजिस्टेंस है is half of the resistance of ADC. मीन्स मैं मान लेता हूँ कि ADC का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R है, कैपिटल R. सो ABC का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/2. अच्छा, एंड वी कैन सी दिस टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल. अगर पैरेलल में होता है तो क्या होता है? करंट डिवीजन होता है. सो यहाँ पे इनपुट करंट कितना है? I नॉट. सो दैट I नॉट विल डिवाइड इन दिस टू ब्रांचेस. और वो कैसे डिवाइड होगा? क्योंकि और हमको पता है पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल सेम होता है, V सेम होगा. तो इसीलिए सो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. सो क्या होगा? सी, मैं मान लेता हूँ इसमें करंट कितना है? I1 ब्रांच 1 ABC में, और इसमें करंट जाएगा I2. सो वो कितना फ्लो होगा? सो I1/I2 मैं लिख सकता हूँ कितना? R2/R1. यस, R2/R1 ऐसे लिख सकता हूँ. सो I1/I2. नाउ R2 क्या है? ब्रांच 2 में रेजिस्टेंस है R, R1 में ब्रांच है R/2. ये अगर कैलकुलेट करोगे सो आएगा I1/I2 इज नथिंग बट 2. I1/I2 कितना आ गया? 2 आ गया. देयरफॉर, और इसको हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं. नाउ सी, देयरफॉर I1 क्या लिख सकते हो? क्योंकि इनपुट करंट कितना आ रहा था? I नॉट आ रहा था ना, तो इसका रेशियो होगा. सो देयरफॉर I1 कैन बी रिटन एज 2/3 into I नॉट एंड I2 कैन बी रिटन एज 1/3 into I नॉट. These are the currents in the branches 1 and 2. एंड देन हमको पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप. नाउ सी, कि लेफ्ट ब्रांच के लिए करंट आ रहा था I1 दैट इज नथिंग बट 2/3 I नॉट. एंड जो राइट ब्रांच था उसमें करंट आ रहा था I नॉट/3. ओके, ऐसा आ रहा था करंट. ना हमको ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. नाउ सी कि फॉर द लेफ्ट ब्रांच में 2 I नॉट/3 आ रहा है. इसमें अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड. मींस ये मैं बोल देता हूँ कि दिस इज B1. मींस ब्रांच 1 के लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर में वो आउटवर्ड होगा, एंड ब्रांच 2 के लिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट इज इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज B2. बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो नेट क्या होगा? B1 - B2. बिकॉज ये ब्रांच 1 में करंट ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके, एंड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वी कैन राइट द फॉर्मूला दैट इज B1 कैन बी रिटन एज mu naught I1/4R, और mu naught 4R. I1 का वैल्यू कितना है? 2 I नॉट/3. दिस इज I1. एंड B2 इज नथिंग बट mu naught I2/4R. ओके, दैट इज mu naught/4R. ये I नॉट/3 है. हमको अभी क्या करना है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो क्या होगा? दैटफॉर B नेट एट द सेंटर विल बी नथिंग बट B1 - B2. तो mu naught/4R इज कॉमन. ठीक है, तो ये होगा 2 I नॉट/3 माइनस I नॉट/3. सो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे वी विल गेट mu naught I नॉट डिवाइडेड बाय 12R. So option A is the correct answer. Yes, easy. Next, the measurement of viscosity of liquids using the terminal velocity. अच्छा, we know the terminal velocity V terminal VT is nothing but 2R square divided by 9 eta sigma minus rho into G, where sigma is the density of solid spherical ball and rho is the density of liquid or fluid. So VT हमको पूछा है VT versus सिग्मा बाई रो का ग्राफ. तो एक काम कर लेते हैं, 2R². R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल. ओके, सो 9 eta इज द विस्कोसिटी. तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको रो कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा? सिग्मा बाई रो माइनस 1 into G होगा. इसको दो टर्म्स में ब्रेक कर लो, सो VT इक्वल टू 2R² बाई 9 eta रो दिस थिंग इनटू सिग्मा बाई रो माइनस, सॉरी और G भी रहेगा. ओके, दिस सिग्मा बाई रो माइनस 2R² सिग्मा G बाई 9 eta. ओके, सो हमको ये वाला ग्राफ पूछा है. ठीक है, y एक्सिस में हमको V टर्मिनल रखना है और x एक्सिस में हमको सिग्मा बाई रो रखना है. तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को कंपेयर करें विद द इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c, तो तुमको क्या पता चलेगा? y एक्सिस में हम लोग V टर्मिनल, x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस में हम लोग रो बाई सिग्मा को प्लॉट करेंगे, एंड सो द slope we will get these things.
and the y-intercept will be negative. Y-intercept will be negative. Okay, आगे. So हमको ग्राफ पता लग गया, ग्राफ का क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा एंड y-intercept नेगेटिव होगा. ओके, नाउ अभी y-intercept ग्राफ तो मींस y-intercept नेगेटिव तीन ग्राफ में, दिस ग्राफ, इस ग्राफ और इस ग्राफ, मींस ग्राफ नंबर 1 एंड ग्राफ नंबर 3 में होगा. ये तो y-intercept कितना है, 0 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 तो नहीं होगा, ऑप्शन 1 और 3 में से कोई होगा. ना उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको सीधा x इंटरसेप्ट के लिए क्या फाइंड, मतलब हाउ टू फाइंड द x इंटरसेप्ट के लिए हम लोग y इंटरसेप्ट 0 पुट करते हैं और y का वैल्यू कितना है vt, y का वैल्यू कितना है vt, ठीक है ना. तो vt को 0 पुट करेंगे, vt को अगर vt इक्वल टू 0 तो वहां से क्या आ जाएगा कि ये जो इनसाइड वाला ब्रैकेट है ना ये 0 आ जाएगा, सिग्मा बाय रो इक्वल टू 1, यस सिग्मा बाय रो इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो x मींस वो जो भी ग्राफ होगा दैट विल कट एट द पॉइंट 1 एंड ग्राफ ऐसा होगा और स्लोप होगा -1 पे, ठीक है. सो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था. नेक्स्ट, two planets P1 and P2 equal masses of radius, these things are given. The escape velocity, okay, we know that the equation of escape velocity v is nothing but root over g m by capital R, where m is the mass of the planet and r is the radius of the planet. Therefore v2 by v1 पूछा है ना, तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा. अच्छा, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2gm आता है, 2gm by r. ओके, तो 2gm2 by r2, अच्छा, डिवाइडेड बाय 2gm1 by r1. ओके, तो 2g तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. नाउ सी ऊपर अभी m2, इसको अगर मैं अच्छे से अरेंज कर लूंगा तो क्या होगा, m2 by m1 इनटू क्या होगा, r1 by r2, दिस थिंग्स. ओके, नाउ m2 by m1 कुछ गिवन है क्या, कि बोथ प्लैनेट्स हैव इक्वल रेडियाई r1 एंड r2. अच्छा, both planets have equal mass, m1 and m2 are same, that's why m1 m2 will cancel and r1 by r2 क्या होगा, इस इक्वेशन से r1 by r2 कितना होगा, r1 by r2 will be, see from here r1 by r2, from here r1 by r2 कितना होगा, r1 by r2 will be 2, so root over 2, so answer will be option 3 is the correct answer. Next, in solar system the time period of revolution of a planet tracing an orbit is, अच्छा, using Kepler's law we already know that t is square proportional to r cube, yes, and from here हमको t का डिपेंडेंस बताना है, तो t के लिए हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या होगा, सो लेफ्ट साइड में क्या होगा t, राइट साइड में क्या होगा r to the power 3/2, ऑप्शन 2 is the correct. Next, two infinitely long parallel conducting wires A and B carry currents I and 2I respectively in the same direction. अच्छा, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, यस हमको पता है. नेक्स्ट, द वायर A has uniform mass per unit length, okay, and lies on insulated floor. अच्छा, insulated floor पे रखा है and infinity, ठीक है ना. दिस इज ये क्या है, दिस इज एक्चुअली A, this wire is A and this is wire is B, और इसका mass per unit length means total mass by total length is कितने given है, m by l is lambda, that is given. Next, कि current is flowing in the same direction, और इसमें current कितना है, this current is I and इसमें जो current है 2I, ठीक है ना. So the wire B is kept fixed at a height h, means इस दोनों के बीच में जो गैप है height कितना है h. The minimum magnitude of height is so that the wire A does not rise above the floor. अच्छा, क्यों above rise होगा, because अगर हमको पता है तो if two conducting wires, अगर दो conducting wires से current flow होता है same direction में तो एक दूसरे पे क्या magnetic force अप्लाई करते हैं और they are attractive in nature because current are in same direction. That's why, so ये जो wire B है ना, wire A को क्या करेगा, force अप्लाई करेगा magnetic force, उसका direction क्या होगा, attractive होगा. So this will be the magnetic force, FB बोल सकते हो, ठीक है. तो ये अगर फोर्स लगाएगा तो दिस वायर ए कैन गो अप अपवर्ड साइड, बट इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसका जो वेट है ना, वेट mg, ये बैलेंस करना पड़ेगा. दैट मींस दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द वायर ए. सो क्या होगा, fb इक्वल टू वेट. अच्छा, दोनों को हम लोग L से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल लेंथ L है, ऑल्दो इनफाइनाइट है, बट हम लोग क्या करते हैं L से डिवाइड करते हैं. सो FB फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे भी वेट पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करते हैं. सो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सो I1 कितना है I, व्हाट इज द अदर करंट 2I, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज
h, तो 2 pi h, and what is the weight? Weight is nothing but mg divided by l. Okay, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. इजी क्वेश्चन है. That is म्यू नॉट, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो गया, सो म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा, पाई इंटू एच, एंड एम जी बाई एल इज नथिंग बट लैम्डा, लैम्डा जी. हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मिनिमम हाइट, एच कितना होगा, एच इज नथिंग बट म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई जी, पाई लैम्डा जी. Yes, that will be option number 2. Option 2 is the correct answer. Next, see कि an ideal Zener diode, अच्छा Zener diode क्या है, आइडियल है, with breakdown voltage कितना है -3 वोल्ट और इनपुट वोल्टेज कितना है -5 वोल्ट. अच्छा, अगर इनपुट वोल्टेज ब्रेकडाउन से ज़्यादा है ना रिवर्स बायस में, that means Zener diode किस तरह काम करेगा, Zener diode will act in reverse breakdown region. Okay, reverse breakdown region, or in reverse breakdown region Zener diode can be replaced by a single वोल्टेज सोर्स, एंड उसका वोल्टेज कितना होगा, -3 वोल्ट और 3 वोल्ट. सी, सो अगर इनपुट में अगर -5 वोल्ट है और यहाँ पे अगर -3 वोल्ट आ रहे हैं, सो इस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना वोल्ट आना पड़ेगा, -2 वोल्ट, और द पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली विल बी 2 वोल्ट, बिकॉज इनपुट में 5 वोल्ट है, जनरल वोल्टेज कितना आ रहा है, 3 वोल्ट, सो रिमेनिंग 2 वोल्ट विल कम अक्रॉस ए एंड बी. सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन एडियाबेटिक एक्सप्रेशन टेम्परेचर of 1 mole of ideal monatomic gas, अच्छा 1 mole given है and gamma is given as 5/3, decreases from 60 to 50 Kelvin. अच्छा, so delta T final change in temperature क्या होगा, final minus initial temperature of 50 minus 60 will be -10. Okay, the work done by this process, in adiabatic process we know that the work done is equal to nr delta T divided by 1 minus gamma. This is the formula of work done. What is the n? N is the number of mole. Number of mole is 1. R is, we know, 8.32 और 8.3 take, because इसमें 8.3 कुछ बोला है, and delta T is -10 divided by 1 minus 5/3. gamma का वैल्यू 5/3 given है. So इसको अगर कैलकुलेट करोगे, you will get work done approximately equal to 124.5 joule. So answer 3 is the correct answer. Next. Okay, next question. A ray of light with wavelength lambda is incident. A ray of light जिसका wavelength कितना है, lambda is incident on 3 different photoelectric cells 1, 2, 3 respectively. The threshold wavelength of these photoelectric cells lambda 1, lambda 2, lambda 3 respectively. अच्छा, okay, तो threshold wavelength given है 3 materials है. This is metal 1, this is metal 2 और this is metal 3. 1, 2, 3. इसका threshold wavelength कितना है, lambda 1, lambda 2, lambda 3. अच्छा, for photoelectric effect we know that for photoelectric effect, the wavelength of incident light that must be less than or equal to the threshold, white threshold. ठीक है ना, white threshold होना चाहिए. Now see कि according to question जो भी lambda 1 is less than, अच्छा lambda 1 is the threshold wavelength and lambda is the wavelength of incident light. So but फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होना चाहिए, लाइट इंसिडेंट जो भी हो रहा है उसका जो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो इसमें तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस नहीं होगा, तो इसीलिए उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल हम क्या बोल देंगे, V1 = 0. ठीक है, नेक्स्ट, तो V1 = 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है, तो बाकी दोनों तो नहीं होगा. ठीक है, ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट, ऑप्शन ए और 1 और 2 में देखो कि lambda 2 is greater than lambda and lambda 3 is much greater than lambda, कि इंसिडेंट लाइट का जो भी वेवलेंथ है दैट इज थ्रेशोल्ड से तो कम है, तो इसमें दोनों में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स होगा. एंड फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन से दैट lambda 3 is greater than lambda 2, lambda 3 will be greater than lambda 2. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मेटल 2 and 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करते हैं. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V0 = hc/e into 1 by lambda minus work function. Work function can be written as hc/lambda threshold. This is the expression of stopping potential in terms of wavelength. Okay, now see for metal 2 stopping potential को हम लोग V2 ले लेते हैं. V2 क्या होगा, hc/e 1 by lambda, ये तो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है. नेक्स्ट hc क्या होगा, hc होगा lambda 2, and for V3 will be hc/e into 1 by lambda minus hc
lambda 3. So v2 v3 आ गया. अच्छा, see if lambda 3 is greater than lambda 2, that means if lambda 3 is greater than lambda 2, that means उसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1 by lambda 3 क्या होगा, लेस देन 1 by lambda 2, ये हो जाएगा. ठीक है. Yes. Now see यहाँ पे देखो कि लाइट तो सेम है ना, तो लाइट का वेवलेंथ भी सेम होगा, तो ये कंप्लीट, ये जो फर्स्ट टर्म होगा दिस विल बी कांस्टेंट, तो इसमें भी कांस्टेंट, इसमें भी सेम. सो इस पे तो डिपेंड नहीं करे स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी. ठीक है. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट टर्म प्रेजेंट हियर, बिकॉज ये कांस्टेंट है अभी, क्योंकि लाइट सेम है. बट इस सेकंड टर्म में क्या है, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बट यहाँ पे क्या है 1 by lambda 2 और यहाँ पे कितना है 1 by lambda 3. अच्छा, तो देखो lambda 3 lambda 2 से ज्यादा है, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला डिनोमिनेटर वैल्यू क्या होगा, ये वाला वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ये होल hc by lambda 3 क्या होगा, कम होगा. इसीलिए v3 क्या होगा, ज्यादा होना पड़ेगा. या फिर इन टर्म्स ऑफ सी 1 by lambda 3 इज लेस देन 1 by lambda 2, मींस यहाँ पे जो भी टर्म्स होगा दैट विल बी लेस देन दिस टर्म. यस और नो. एंड दैट्स व्हाई माय यहाँ ये तो फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, बट ये वाला वैल्यू लेस है और ये वाला वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए v3 क्या होगा, v3 विल बी ग्रेटर देन v2. सो इसीलिए आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन 1. Yes. Next question is a photon and electron each of energy, दोनों का एनर्जी सेम है, दोनों का एनर्जी 20 है. मैं E मान लेता हूँ कि इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके. मूव इन फ्री स्पेस द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम. अच्छा, सो फॉर इलेक्ट्रॉन द लीनियर मोमेंटम कैन बी रिटन एज PE कैन बी रिटन एज रूट ओवर 2m into एनर्जी, ऐसे लिखता हूँ. ठीक है. एंड देन for photon the linear momentum can be written as energy divided by speed of light. yes. अभी हमको पूछा क्या है, अभी हमको पूछा है कि सॉरी यहाँ पे pH होगा, so p e by p pH, इसको रेशियो निकाल लो 2m e divided by e by c. इसको अगर करोगे ना तो क्या आएगा, रूट ओवर 2m डिवाइड 2m by e into c. अच्छा, व्हाट इज m, कैलकुलेट करो, रूट ओवर 2. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 9 into 10 to the power minus 31. नेक्स्ट एनर्जी कितना गिवन है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.6 into 10 to the power minus 19. इसको कन्वर्ट कर लो SI यूनिट में, एंड देन c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यस. एंड और कुछ गिवन है क्या, एनीथिंग गिवन. ओके. सो आई थिंक यहाँ तक हो गया. सो उसके बाद जस्ट इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 225. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन. सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ, इसमें तो इंडेक्स करेक्शन का बात ही नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका तो नहीं है, बट फोकल लेंथ. यस, कि हम लोग लेंस का फोकल लेंथ करेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो ऑप्शन 3 is the correct answer here. Next, a unit positive point charge is taken slowly through an infinite thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r. अच्छा, so initially the charge, this is initial point A पे था, finally B point पे लेके गया. Okay, कितना चार्ज Q लेके गया, and unit positive, मान लेते कि ये वाला चार्ज कितना है, Q is +1. Okay, and the positive charge density rho. ओके. अच्छा, सो एक काम कर लेते हैं. वी नो दैट टोटल वर्क डन कैन बी रिटन एज Q into डेल्टा V. यस, Q into डेल्टा V. अच्छा, सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. सो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, VB माइनस VA कैलकुलेट कर सकते हैं. सो क्या होगा, W इक्वल टू चार्ज का वैल्यू कितने, चार्ज का वैल्यू तो 1 है, +1 है. नेक्स्ट, व्हाट इज VB, VB विल बी नथिंग बट K. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस टोटल चार्ज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर में मान लेते हैं इसका वैल्यू Q है, तो ये होगा B पॉइंट पे, ये जो B पॉइंट है ना, B पॉइंट पे ये कंप्लीट स्फीयर के लिए पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इट इज 3r. तो ये होगा 3r माइनस A पॉइंट पे इस कंप्लीट स्फीयर के लिए पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी KQ बाय 2r, बिकॉज सेंटर से डिस्टेंस ये वाला है. नेक्स्ट, W इक्वल टू 1 तो वो रिमूव हो जाएगा, तो एक्चुअली होगा KQ बाय 6r. अगर इसको एलसीएम लेके करते हैं तो क्या होगा, दिस विल बी
2 माइनस 3kq एंड उसको अगर करेंगे सो वर्क डन आ जाएगा मेरा kq/6r, kq/6r। ओके, नाउ सी, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सो वर्क डन इक्वल टू, इसको हम लोग k को लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught। ओके, ये तो r रहने दो। नाउ q, हाउ टू कैलकुलेट दिस q? q can be written as if rho is the volume charge density। Okay, this is therefore volume charge density can be written as what? Total charge divided by total volume. Total volume of the sphere is how much? 4/3 pi r cube. So from here we can get the q. q equal to क्या हो जाएगा? Rho into 4/3 into pi r cube. So यहाँ से बहुत कुछ कैंसिल होगा। So एक r cancelled. So pi cancelled, 4 cancelled, and then from here, so we will get w equal to rho r square divided by 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा और एक 6 था ना यहाँ पे, ये जो नीचे 6 था ये 6 भी रहेगा यहाँ पे, 6 इंटू 6 मीन्स ये हो जाएगा एक्चुअली रो आर स्क्वायर बाई 18 एप्सिलॉन नॉट आर। और यही क्वेश्चन में गिवन है कि रो आर स्क्वायर बाई एन एप्सिलॉन, अच्छा आर भी कैंसिल हो जाएगा ना, एक आर कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया तो रो आर रह जाएगा यहाँ पे इंटू 6, जस्ट 6। ठीक है, सो ये क्या होगा एक्चुअली 18 एप्सिलॉन नॉट। सो n का वैल्यू कितना आएगा? n का वैल्यू 18 आ जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। सो कंसीडर 3 मीडिया p q r with refractive indexes, these are refractive indexes given the medium। अच्छा ओके, सो इसमें ना दो केस है कि केस नंबर 1 में एक ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर इज एट मीडियम p एंड वो इस ऑब्जेक्ट O को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सो व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस, व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस, एकदम मिडिल में है तो क्या होगा, ये होगा 2.5 एंड दिस इज आल्सो 2.5। ठीक है, सो अगर यहाँ से वो देख रहा है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल यूज द apparent depth divided by actual depth। apparent depth इसमें क्या गिवन है, इस केस 1 में h1 डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ में h0 मान रहा हूँ, दैट इज नथिंग बट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अभी कहाँ पे है, ऑब्जर्वर इज एट p डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट q। yes, so h1 by h0 will be np by nq। so h1 can be written as np, np is given as 1, nq is given as how much, nq is 1.25 and h0 means actual depth कितना है 2.5। if you calculate this h1 you will get 2 centimeter। okay, you will get h1 equal to 2 centimeter। next in the second case observer अभी कहाँ पे, इस r medium पे, this is the observer and he is looking here from here। so in this case if we apply the formula, so h2 by h0 apparent depth by actual depth will be nothing but refractive index of observer जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है r डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट इसमें q। so h2 इक्वल टू nr कितना है 1.5, nq कितना है 1.25 इंटू h0 इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2.5। इसमें भी एक्चुअल डेप्थ 2.5 ही है, यस और नो, ये वाला एक्चुअल डेप्थ 2.5। so if you calculate h2 you will get actually 3 centimeter। so आ गया। so हमको अभी पूछा क्या है, find the difference h1 minus h2, that is 2 minus 3 will be mod लेना है तो 1 centimeter आ जाएगा। so option B is the correct answer। next हाँ कि इसमें क्या गिवन है कि there are a frictionless circular wire of unit radius। अच्छा रेडियस उसका 1 है, is fixed on a, so रेडियस उसका 1 है, is fixed on a horizontal 2 point particles of unit mass। दोनों का मास कितने है 1 है। मींस एक्चुअली हो क्या रहा है, इस पॉइंट A से मींस दो पार्टिकल, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो तुमको पूछा है एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा हाउ द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेरीज। तो हम लोग काम करते हैं ये थीटा एंगल पे, ठीक है ना, बॉडी मान लो ये बॉडी यहाँ पे आ गया, एक बॉडी यहाँ पे और एक बॉडी यहाँ पे आ गया, सो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, बाय सिमेट्री वी कैन से, सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी लाइक दिस। यस, तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ अच्छे से, इफ यू रिजॉल्व दिस, सी सो ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला कितना एंगल होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इफ वी रिजॉल्व दिस v, दिस विल बी नथिंग बट v cos थीटा एंड दिस विल बी नथिंग बट v sin थीटा। सिमिलरली व्हेन द अनदर बॉडी कम्स हियर, सो उसका वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में। एंड अगर मैं एक वर्टिकल एक्सिस बनाऊं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा एंड इफ वी रिजॉल्व दिस वी विल गेट टू कंपोनेंट
एक डाउनवर्ड एक लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगा, ये v cos theta and this will be v sin theta. Okay, so ये तो velocity आ गया. So can we write the momentum? Yes, can we write the momentum? Yes. Yes. अच्छा इसको मैं मान लेता हूँ, this is body 1 and this is body number 2. तो total momentum कितना होगा, therefore total momentum p naught vector is nothing but p1 vector plus p2 vector. So p net vector. तो p1 vector कैसे लिख सकते हो, मास तो 1 है ना, तो लिखो या फिर नहीं लिखो, तो बोथ आर सेम ओनली. सो एम भी क्या होगा, v माइनस v. अच्छा 1 तो कौन सा है, 1 इज लेफ्ट साइड वाला पार्ट, इसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट नेगेटिव की तरफ है, तो क्या होगा माइनस v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप. दिस इज द p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर क्या है, p2 इज नथिंग बट v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप. ठीक है, v cos थीटा j कैप. सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट p net vector is nothing but minus 2mv cos थीटा j कैप, क्योंकि sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे m का वैल्यू 1 है ना, तो डायरेक्टली 2v cos थीटा j कैप हो जाएगा. दिस v sin थीटा i कैप एंड दिस v sin थीटा i कैप विल बी कैंसिल. सो p net तो आ गया, वही p net आ गया कितना, 2v cos थीटा i कैप. दिस इज द व्हाट p net. बट उसका हमको क्या लेना है, हमको अभी चेक करना है मैग्नीट्यूड लेके. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी नेट वेक्टर क्या होगा, 2v cos थीटा. सो linear momentum will vary with respect to theta. Now different theta put करो at theta equal to minus pi by 2. minus pi by 2 में कितना होगा, p net आ जाएगा कितना, cos minus 90 में कितना 0 आएगा. Similarly at theta equal to plus pi by 2 उसमें भी कितना होगा, p net will be 0. ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2 में 0 और प्लस पाई बाई 2 में 0. तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 में 0 एंड प्लस पाई बाई 2 में 0. बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं. तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर. यस. नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r is increased by small amount delta t. अच्छा, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा t. ओके, एक स्मॉल स्फीयर था, मान लेते इसका वॉल्यूम था v, देन कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, उसका फाइनल वॉल्यूम v डैश हो जाएगा. ठीक है, सो इनिशियल रेडियस था r. द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा, then the approximate increase in the volume expansion is. So we know that the coefficient of volume expansion gamma can be written as delta v by v into 1 by delta t. So this is the formula of coefficient of volumetric expansion, and in terms of linear expansion gamma can be written as 3 alpha अगर uniformly वो हुआ expand हुआ. ठीक है, now delta v and what is the initial volume v. Okay, v and what is the temperature, delta t. Okay, so हमको delta v पूछा है, delta v क्या होगा, 3 alpha v delta t. now what is 3 alpha and what is the value of की वॉल्यूम क्या है, मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब डेल्टा t. so 3 will be cancelled, 3 will be cancelled, तो क्या होगा 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t, 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t. तो ऑप्शन 3 is the correct answer. Yes. Next, a cylindrical cork of uniform density floats in a liquid of density. अच्छा, if we make the diagram like this, यहाँ पे मान लेते हैं this is a container and this contains a fluid. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है, एक cork क्या हो रहा है, एकदम float कर रहा है. ठीक है ना. Now if the cork is depressed slightly, अच्छा इस cork को मान लेते हैं ये cylindrical cork है, थोड़ा सा मीन्स उसको इस fluid के अंदर नीचे की तरफ फोर्स दिया, मीन्स वो x डिस्टेंस ट्रेवल के मान लेते हो. ठीक है ना. सो क्या होगा, बिकॉज ऑफ बायोन्सी क्या होगा, वो बायोन फोर्स एक लगाएगा ना फ्लूइड, बायोन फोर्स ऐसे एफ बी ऐसा लगाएगा. इसका फॉर्मूला कितना है, वी रो जी, और यहाँ पे रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी इज द इंसर्टेड वॉल्यूम. मींस जो भी चीज हम लोग फ्लूइड के अंदर जो भी इंसर्ट किया, ठीक है ना, इंसर्ट किया तो उस वो वाला पार्ट का वॉल्यूम. तो मान लेते हैं कि ये द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द cork is A, so what will be the volume of this part will be V equal to A into rho. That means the Bion force
एफ बी कैन बी रिटन एज वी रो जी एंड वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, वॉल्यूम का वैल्यू है एक्चुअली ए इंटू एक्स रो जी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, एफ बी इक्वल टू क्या होगा, ए रो जी इंटू एक्स, यस ए रो जी इंटू एक्स। बट सिंस बोल रहा है कि दिस सिस्टम विल ऑसिलेट, क्यों ऑसिलेट करेगा, बिकॉज इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे रख दूंगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ बाइंड फोर्स इट विल जस्ट ऑसिलेट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ऑसिलेशन का इसको हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं, और ऑसिलेशन में क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है ना, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। इफ यू नेग्लेक्ट द माइनस साइन, माइनस एक्चुअली होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी एक्चुअली देखो कि मैं तो इसको डिस्प्लेस किया नीचे की तरफ, बट बाइंड फोर्स कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये अपोजिट, तो हम लोग एक्चुअली इक्वेशन में यहाँ पे एक माइनस लगा सकते हैं, ठीक है ना, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के एक्स आएगा। तो फ्रॉम हियर के का वैल्यू कितना आएगा, के का वैल्यू आएगा ए रो जी, के का वैल्यू आएगा ए रो जी, जो स्प्रिंग मास कांस्टेंट में के होता है ना, दैट इज ए रो जी। तो ये आ गया। नाउ सी, इसको लिख लेते हैं कि के इज नथिंग बट ए रो जी, यस। सो वी नो दैट द टाइम पीरियड of simple harmonic motion, or in this case will be nothing but 2 pi root over m by k, yes। और यहाँ पे सब चीज क्या है, सब चीज कांस्टेंट है, 2 pi is constant and 2 pi is constant, mass is constant, but और क्या है यहाँ पे, ओके 2 pi constant but k is different, why k is different, say t equal to 2 pi root over m divided by ए रो जी, बिकॉज डेंसिटी अगर डिफरेंट देंगे ना, डेंसिटी अगर डिफरेंट हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट हो जाएगा। तो 2 पाई मास ए जी ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, बट यहाँ पे डेंसिटी टर्म्स आ गया। सो एक्चुअली तो दिस टाइम पीरियड विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। ओके, नाउ सी कि क्या गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको ओके रो 2 बाई रो 1 फाइंड करना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट दैट t square proportional to 1 by rho, and from here rho proportional to कितना होगा 1 by t square. So this will be the relative expression, rho will be 1 by t square. So इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि rho तो क्या होगा, rho will be proportional to 1 by t square, rho will be proportional to t square. Okay, so rho 2 by rho 1 is nothing but t2 square by t1 square, rho 2 will be nothing but t2 square by t1 square by t2 square, इनवर्स है ना, t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर आ जाएगा। अभी सी कि इनिशियली अगर t रहा इसका टाइम पीरियड, तो अभी टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। सो t स्क्वायर बाय 2t का होल स्क्वायर, दैट मींस दैट विल गेट 1 by 4. So rho 2 by rho 1 will be nothing but 1 by 4. So option 4 is the correct answer. Next, one main scale division of vernier caliper is equal to, main scale division, one MSD is given as how much, 1 मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, number of divisions on vernier scale is given as how much, is given as 10, yes, number of divisions on vernier scale is given as 10. Okay, so therefore least count can be written as 1 MSD divided by number of divisions of vernier scale, 0.1 centimeter, 0.1 centimeter divided by 10 will be 0.01 centimeter. Okay, so when both the jaws are touched together, then the vernier scale shift to the left of 0, that means यहाँ पे negative 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 error is negative, and उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितना है 10, और कौन सा डिवीजन मैच करे, 4 डिवीजन, 10 minus 4 into लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 0.06 सेंटीमीटर आएगा। एंड द scale measured the length of the wire is, अच्छा measured length is 1 centimeter, therefore the corrected length or correct length क्या होगा, measured minus error, so measured is 1 minus of 0.06, that will be 1.06 सेंटीमीटर। सो ये तो कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, a solid sphere A of radius r and this are given। तो तुमको पूछा है कि मींस अगर इस दो स्फीयर है, ठीक है ना, सो अगर इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और इस एक्सिस का अगर हम रोटेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई बी है। ओके, देयरफॉर
सो IA कितना होगा, IA कितना होगा, सॉलिड स्फीयर का कितना 2/5, मास कितना है बड़ा स्फीयर का A स्फीयर का m, रेडियस इज r स्क्वायर, अच्छा प्लस। तो अभी हम लोग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास जहां से पास होता है उस एक्सिस में पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे प्लस ये md स्क्वायर करेंगे बिकॉज वी विल यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यस, तो यहाँ पे होगा प्लस 2/5 स्मॉल m r स्क्वायर प्लस m, और टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर रेडियस कैपिटल r स्मॉल है तो टोटल डिस्टेंस होगा r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी IA। सिमिलरली IB कैन बी कैलकुलेटेड एज 2/5 स्मॉल m r स्क्वायर प्लस 2/5 कैपिटल M r स्क्वायर प्लस, इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। इस एक्सिस के बाद रोटेट करा रहा हूँ तो पहले इसमें कैलकुलेट करूंगा एंड देन उसके बाद md स्क्वायर लगाऊंगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो दिस प्लस m इंटू r प्लस r का होल स्क्वायर। ना हमको पूछा गया IA माइनस IB, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। सो टर्म्स दिस विल बी कैंसल्ड, ठीक है, ओनली सो m, अच्छा r प्लस r स्क्वायर दोनों में है, ठीक है ना, ये कैंसिल होगा तो क्या होगा m माइनस कैपिटल M। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider a spring mass simple oscillator in one dimension, the mass of the particle is in m this okay, अच्छा। सो हमको on the xb plane the graph v is a function of this। सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कि एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है से, energy in simple harmonic motion, okay, total energy is remaining constant na, okay, so total energy can be written as kinetic energy plus potential energy, so that can be written as how much, that is written as 1 by half mv square plus half kx square। yes, और एक काम करते हैं, इस e को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा लेफ्ट साइड में 1, तो क्या होगा mv square by e प्लस kx square by 2e, ठीक है ना। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि v square डिवाइडेड बाय 2e by m प्लस प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e by k इक्वल टू कितना होगा 1, ठीक है ना। सो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज नथिंग बट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर कितना होता है 1 होते हैं, और फॉर ए परफेक्टली सर्कल, क्योंकि ये गिवन क्या है v वर्सेस x ग्राफ इज परफेक्टली सर्कल, दैट मींस a इक्वल टू b होना पड़ेगा। सो a इक्वल टू b, जो भी डिनोमिनेटर में इसका जो भी वैल्यू है बोथ आर मस्ट बी इक्वल, दैट मींस 2e by m इक्वल टू 2e by k, एंड फ्रॉम हियर m इक्वल टू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यस, नाउ इन दिस केस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो इन दिस केस हमको क्या पूछा, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज फॉर्म्ड। ओके, तो लेंस 1 के लिए E1 कितना होगा, E1 इज -30, देन f1 focal length is given as +10 cm because this is convex lens। तो पहले v1 कैलकुलेट करते हैं, सो वी विल अप्लाई 1 बाय लेंस फॉर्मूला 1 बाय v1 माइनस 1 बाय v1 इक्वल टू 1 बाय f1। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे सो v1 आएगा हमारा, आई थिंक वी विल गेट v1 इक्वल टू, सो ये जो इमेज बनेगा ड्यू टू फास्ट लेंस दिस v1 विल बी इक्वल टू +15 सेंटीमीटर बनेगा, मींस इस लेंस से कितना, इस लेंस से 15 सेंटीमीटर इधर बनेगा 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इमेज, मान लेते हैं कि ये इमेज ऐसा है, ठीक है ना, इमेज तो एक्चुअली नीचे की तरफ होगा। सो ये जो इमेज बनेगा दैट इमेज will act as the object for lens number 2 and that's why this distance will be object distance। तो from here total देखो यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस 15 है और ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 12 हो जाएगा। सो फॉर लेंस नंबर 2 U2 कितना होगा, फॉर लेंस नंबर 2 U2 होगा एक्चुअली +12, क्योंकि राइट साइड में ऑब्जेक्ट होगा। एक फोकल लेंथ क्या होगा कॉन्केव लेंस के लिए -10 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम लोग V2 फाइंड करने, दैट विल बी द फाइनल इमेज position। So 1 by V2 minus 1 by U2 equal to 1 by F2। If you calculate this, you will get V2 equal to how much, V2 equal to -60 centimeter। Okay, -60 centimeter means final image जो बनेगा इस concave lens से -60 centimeter means left side में बनेगा 60 centimeter to the left of the concave lens। So option number 2 is the correct answer। Very easy question, directly formula based। Next, see an AC voltage, V equal to इतना given है, V equal to this given। अच्छा, from here, so from here Vm, what is the peak voltage, 220 volt, and what is the
ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकॉज Vm sin ओमेगा टी, सो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 into 10 to the power 3, दिस इज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। इट इज गिवन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, तो सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या पूछा है, द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट। अच्छा पहले देख लेते हैं कि ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है रेजोनेंस में है कि नहीं, ठीक है। तो पहले एक्सएल कैलकुलेट करते हैं, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इनटू एल, ओमेगा इज गिवन एज 2 into 10 to the power 3, L is given as 10 millihenry, that means 10 to the power minus 3 Henry। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे you will get 20, तो 20 ओम आएगा आंसर। नेक्स्ट x इक्वल टू कितना होगा 1 by ओमेगा into c means 1 by 2 into 10 to the power 3 into capacitance, कैपेसिटेंस कितना गिवन है 25 into 10 to the power minus 6, if you calculate you will also get 20 ohm, that means XL equal to XC, that means they are in resonance and we know the impedance in a series LCR circuit is R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। अगर XL इक्वल टू XC हो गया तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, दैट मींस impedance will become resistance, impedance will become equal to resistance, and in that case the current amplitude I naught will be nothing but V naught by Z, and V naught Z means what, Z means R, V naught is sorry Vm, हाँ ठीक है ना, peak Vm by R, Vm कितना given है, this is given as 220 and what is the resistance given 100, so that will be 2.2 ampere, so option A is the correct answer, very simple question। Next कि a thin horizontal disc rotating about vertical a thin is rotating about vertical disc axis, okay, vertical axis passing through this angular momentum LA and LB computed about the points A and B। अच्छा OB equal to 2 OA, मान लेता हूँ ये वाला डिस्टेंस D है तो ये वाला डिस्टेंस भी D है, मींस टोटल डिस्टेंस ये वाला 2D है, ठीक है। सो इसमें अभी A पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कितना है L है, और B पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना है LB है। वी नो दैट अगर यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहे हैं ना, इन दिस केस बॉडी इज प्योरली रोटेटिंग, सो वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर rotating body is nothing but moment of inertia about which body is rotating into ओमेगा, ठीक है ना, into ओमेगा तो चेंज नहीं होगा ना, ओमेगा सेम ही होगा दोनों केस में। सो LA क्या लिख सकते हो, LA is nothing but moment of inertia, actually body is moving with the about its fixed center, तो moment of inertia क्या होगा mr square by 2 into ओमेगा, एंड सिमिलरली LB इक्वल टू कितना होगा, LB इक्वल टू इस पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर क्या होगा mr स्क्वायर बाय 2 into ओमेगा, तो दोनों में तो LA by LB पूछा है, LA by LB कितना होगा 1 होगा, आंसर ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट ए कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस, अच्छा लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम कि ए कंडक्टिंग लूप ऑफ फाइनाइट रेजिस्टेंस, अच्छा लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया तो हम लोग मान सकते हैं कि दिस इज x axis, y axis, this is z axis, okay, there is a constant magnetic field in the z direction, means constant magnetic field means parallel, this is B constant। next the area is varying, ये जो area होगा ना area, बट एरिया वेक्टर हम लोग सेम डायरेक्शन में ले लेंगे, सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा along z axis only, so area is given as this is a vector, area will be given as a naught 1 plus sin t, ये टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ठीक है। सो हमको पूछा है कि पावर, सो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंस एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो एक्चुअली क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सो कि तो phi b इज नथिंग बट b डॉट एरिया वेक्टर, यस, और सिंस दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो b ए cos कितना डिग्री लिख सकते हो 0 डिग्री, बिकॉज़ सेम डायरेक्शन है, तो phi b इज नथिंग बट b, मैग्नेटिक फील्ड तो b है, व्हाट इज एरिया a नॉट sin a नॉट 1 प्लस sin t, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहे हैं दैट मींस देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो एक्चुअली जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दैट इज आल्सो वेरी, दैट मींस एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस d phi b by dt, इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा b a नॉट कांस्टेंट, ठीक है, सो 1 का 0 होगा डिफरेंशिएशन, प्लस sin t का क्या होगा cos t, अच्छा पहले एक माइनस था ना, ये माइनस को एज इट इज रख देते, सो दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा माइनस b a नॉट cos t, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ
induced EMF, this is varying. So पूछा है कि power, so power is nothing but v square by r or epsilon square by r, so b square a naught square cos square t by r, cos square t by r. so ये एक्चुअली ग्राफ कैसे होगा, इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे, सी इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में cos का ग्राफ है ना, cos स्क्वायर का ग्राफ है, मींस 0 cos 0, अगर थीटा या फिर t इक्वल टू 0 पुट करो तो cos कितना होगा, cos 0 विल बी कितना 1, तो 0 पे वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आ रहा है, तो इसमें भी 1 आ सकता है, इसमें भी 1 आ सकता है, ठीक है, बट आगे जो भी कांस्टेंट है इसके लिए पावर विल बी कांस्टेंट, 1 नहीं कुछ तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, बट यहाँ पे तो कंप्लीट ग्राफ में कांस्टेंट है, बट cos स्क्वायर t इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग ना, सो इसीलिए आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ एक एक पॉइंट पुट करके भी देख सकते हैं, बट इट इज डायरेक्टली वी आर गेटिंग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें क्या गिवन है, ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी, ये वाला कैविटी वाला प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, इनसाइड ए कैविटी विद इन ए सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये देखो पहले तो ना देखो यहाँ पे सिंस प्लस क्यू है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, बैलेंस होने के लिए, और इस कॉन्डक्टिव स्फीयर के बाहर में क्या आ जाएगा, टोटल प्लस क्यू आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। सो एक्चुअली इस कंप्लीट बॉडी को मैं क्या रिप्लेस कर सकते हो, द सेंटर में प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और पॉइंट बी एंड पॉइंट सी बोथ आर एट सेम डिस्टेंस, तो इसीलिए फॉर दिस होल सिस्टम दे आर आउटसाइड पॉइंट ना, तो बी और सी में दोनों पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, सो ई बी इक्वल टू ई सी, तो कौन सा ऑप्शन में 1 और 2 में है, ठीक है, और हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को किया भी है कि अगर कैविटी वाला प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 नहीं होता, एक्चुअली वो क्या होता है, इट्स कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट, सो ये तो 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यस, ठीक है। नेक्स्ट, okay, next consider fixed uniform charged insulating sphere of radius r and total charge q, a point charge minus q with mass m is released from rest at center at a distance of 3 r. so if we draw the diagram like this कि यहाँ पे क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है r, तो और एक चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, और इसका टोटल चार्ज है प्लस क्यू, टोटल रेडियस इज r, एंड और एक चार्ज है माइनस क्यू जिसका वैल्यू बहुत छोटा है, एंड दिस इज present at a distance of 3 r from the sensor. So this is the initial position, and when the charge, because ये negative positive attraction होगा तो चार्ज में फोर्स लगाएगा ये बड़ा वाला स्फीयर, तो इसलिए फाइनली वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा आके, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल पोजीशन। तो पूछा कि when the point charge reaches the surface of the sphere its speed, तो यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाँ, इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी plus initial potential energy will be equal to final kinetic energy plus final potential energy, yes, okay, u final, okay, so initially body क्या पे, initially this body is at rest, so initial kinetic energy will be 0, ये भी रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the potential energy can be written as k q minus q, and what is the total distance between the charges will be 3r, this is initial। next, final kinetic energy क्या होगा, हाफ m क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, ये जब यहाँ पे आएगा उसका वेलोसिटी कुछ तो होगा, v होगा, तो इसलिए हाफ m v स्क्वायर प्लस k q माइनस q, द टोटल डिस्टेंस, जब ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगा सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी कैपिटल R ओनली। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो अच्छे से, सो यू विल गेट, so you will get कि half m v square is nothing but LCM वगैरह ले लो, थोड़ा कैलकुलेट कर लो, you will get 2k q by 3r, यहाँ से you will calculate v equal to root over q divided by 3 pi epsilon naught mr, यहाँ पे k का वैल्यू कूलम्ब्स कांस्टेंट इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught हम लोगों ने पुट किया, तो ये वाला आंसर आ रहा है, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये क्या क्वेश्चन, this experiment the number of scattered particles is plotted as a function of scattering angle. Number of scattered alpha particles, you know that the number of scattered alpha particles is directly proportional to 1 to the power 1 divided by sin to the power 4 theta by 2. So if you see, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, एक काम कर लेते हैं, थीटा का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन पे थीटा का वैल्यू 0 पुट करो तो n कितना आएगा, n
मींस कांस्टेंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो क्या होगा, sin 0 कितना होता है, sin 0 इज 0, तो 1/0 एक्चुअली इंफिनिटी आएगा। सो थीटा इक्वल टू 0 पे एन का वैल्यू कितना आएगा, इंफिनिटी। 0 पे देखो, 0 पे इंफिनिटी कौन है, ये वाला, और बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि कंसीडर टू सर्किट्स ए एंड बी हैविंग टू रेजिस्टेंस, एक का पॉजिटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट, एक का नेगेटिव टेंपरेचर कोफिशिएंट, एंड इस सर्किट 1 में आई करंट फ्लो है, सर्किट बी में करंट आई बी फ्लो है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले सर्किट ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सर्किट ए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली दिस माइनस अल्फा डेल्टा टी, दिस प्लस अल्फा डेल्टा टी विल बी कैंसिल ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई वी विल गेट टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2R0 आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर IA यूजिंग कोलॉस लॉ कितना होगा, वोल्टेज इज V एंड रेजिस्टेंस इज 2R0। सो यहाँ पे देखो IA इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर, सो IA तो रिमेन सेम होगा, तो IA रिमेन सेम कहाँ पे है, सो ऑप्शन ए में भी है एंड ऑप्शन डी में भी है, बट अभी बी को चेक करना है। तो बी को कैसे चेक करेंगे, सी दिस टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, दिस टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट टू बी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन, सो R0 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो R0 पहले मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे फिर से 2R0 आ जाएगा। तो इसको अगर देखो, सो इसको अगर R0 एक R0 कैंसिल करोगे, सो क्या आएगा, R0/2 1 माइनस अल्फा डेल्टा डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, सो R इक्विवेलेंट ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। नाउ सी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये वाला टर्म इंक्रीज होगा, ये वाला टर्म इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, R इक्विवेलेंट विल डिक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस और चेंज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन R इक्विवेलेंट विल डिक्रीज, एंड दैट्स व्हाई IB क्या होगा, IB विल इंक्रीज। तो करंट IB विल इंक्रीज एंड करंट IA विल रिमेन एज इट इज। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया। नेक्स्ट, सो ये वाला क्या गिवन है कि दिस आर द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट। सो सी सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका जो डायमेंशन है ना, या फिर जो भी फॉर्मूला है उससे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका कैलकुलेट करोगे तो m3 माइनस mt टू द पावर -3 k टू द पावर -4 आएगा इसका डायमेंशन, एंड फ्रॉम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी आ जाएगा हमारे पास m l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1, एंड लास्ट में आएगा वाइन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, दैट इज क्या, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ से ये जो कांस्टेंट b है ना, ये b का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास l इंटू के, और हमको क्या पूछा है कि सिग्मा एस के b टू द पावर -1 एंड b, इस सब का डायमेंशन अगर तुम वो करोगे, अच्छे से पुट करोगे, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर एज l-1 t-1 k-2, l-1 t-1 k-2, so option A is the correct answer. Next, an electromagnetic wave EM wave is given, अच्छा, it is a lossless dielectric medium, that's why mu r कितना होगा, lossless बोला है ना, that means mu r equal to 1, epsilon r is given as 9, अच्छा, electric field is given as E0 sin kz minus 2 pi into 10 to the power 6 into d, that means the wave is traveling along z axis, okay, and electric field is varying along y x axis, so magnetic field will vary along y axis, so that can be written as B0 sin kz minus 2 pi into 10 to the power 6 into d, this will be the equation of magnetic field. So magnetic field B0 क्या होगा, E0 by V होगा, yes, B0 equal to E0 by V, but see in this equation it is given as By equal to B0 by V, which is incorrect, ये incorrect लिखा है, हमको incorrect चूज करना है, ठीक है, हमको incorrect चूज करना है, तो ये incorrect है। नेक्स्ट सी, उसके बाद फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट ओमेगा कैलकुलेट करो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी होगा 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी आ गया, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि therefore स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ EM हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज c by root over mu r epsilon r, so ये कैलकुलेट करोगे 3 into 10 to the power 8, mu r कितना गिवन है 1 and epsilon r is given as 9, इसको कैलकुलेट करोगे you will get 10 to the power 8 meter per second, the speed of EM is 10 to the power 8 meter per second, yes, okay, v equal to 10 to the power 8 meter per second और frequency था 10 to the power 6 hertz,
ओके नेक्स्ट हम लोग अभी क्या करेंगे कि उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. लैम्डा इक्वल वी नो दैट speed of any wave can be written as lambda into frequency. From here lambda equal to क्या होगा v by frequency होगा, v equal कितना 10 to the power 8, v कितना होगा 10 to the power 6, तो ये होगा 10 square means 100 मीटर. बट क्वेश्चन में क्या ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, इट इज 300 मीटर. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. तो बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग z axis, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. तो एक्चुअली हमको पूछा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था बट दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हम लोग 2 और 3 कोई भी आंसर टिक करोगे तो उसका आंसर करेक्ट होगा. ओके नेक्स्ट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस. अच्छा सो यहाँ पे टोटल हीट सप्लाइड. पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट हीट गिवन माइनस वर्क डन. यस अच्छा सिंस ये साइक्लिक प्रोसेस है. अच्छा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, डेल्टा यू इज नथिंग बट एनसीवी डेल्टा टी. ओके एनसीवी डेल्टा टी बिकॉज ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0 होगा. दैट इज डेल्टा यू आल्सो बिकम 0. तो ये डेल्टा यू 0 पुट करोगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क डन. वर्क डन ओनली. सो हीट सप्लाइड इज नथिंग बट एक्चुअली वर्क डन ओनली. एंड वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस. एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे. सो ये रेक्टेंगुलर एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ये वाला लेंथ कितना होगा, दिस इज 5 minus 2 विल बी 3 एंड दिस विल बी 300 minus 100 will be 200. 300 minus 100 will be 200. So answer will be 3 into 200, that means 600 joule. That's directly simple answer. Option 3 is the correct answer. Next, consider the electron revolving. अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. So this is the nucleus plus, ठीक है, this is the nucleus and this is electron is revolving and this is radius r. Okay, with a velocity. अच्छा उसका velocity और speed given है, ठीक है, ये मान लेते हैं velocity ये given है this. नेक्स्ट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस. रेडियस पूछा है, रेडियस का वैल्यू x पूछा है. तो इसमें हम लोग कौन सा चीज अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें जो भी मींस पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा ना, कूलम्ब्स फोर्स, दैट अट्रैक्टिव फोर्स विल गिव द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कि रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के. उसके बाद एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, मींस एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन है. तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, दैट इज सी ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, प्रोटॉन का चार्ज भी, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस में रेडियस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा m v स्क्वायर बाय r. एक r कैंसिल हो जाएगा. सो e स्क्वायर मींस 1.6 into 10 to the power minus 19 इसका स्क्वायर होगा, ठीक है. एंड देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होगा इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r. सो यहाँ से हम सॉरी m v स्क्वायर होगा. यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट जस्ट ओनली r. सो r कितना होगा, r इज नथिंग बट 1.6 into 10 to the power minus 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और एक चीज यहाँ पे गिवन था क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 into 10 to the power 9. तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि 9 into 10 to the power 9 गिवन है क्वेश्चन में. एंड मास m, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9 into 10 to the power minus 31. एंड व्हाट इज v स्क्वायर इज गिवन एज रूट ओवर 25.6 into 10 to the power 5, ठीक है ना. सो ये होगा. सो इसको अगर कैलकुलेट करो, इफ यू कैलकुलेट दिस थिंग्स यू विल गेट r इक्वल टू हाउ मच, यू विल गेट r इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर. यू विल गेट r इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर. और क्वेश्चन में गिवन था x into 10 to the power minus 9 मीटर. सो x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर x will be nothing but only 1 only. x will be nothing but only 1. सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. यस, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एक कार ट्रेवल्स ऑन ए रेस ट्रैक ऑफ रेडियस. अच्छा ओके, सो दिस इज अ कार. ओके एंड मान लेते हैं कि दिस रेडियस r, कैपिटल R. ओके सो एक काम करते हैं, इसका पहले ये मान लेते हैं थीटा. तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, mg होगा. सो इफ वी रिजॉल्व दिस mg इनटू टू कंपोनेंट, दिस विल बी थीटा mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा. ओके mg sin थीटा. ओके एंड दिस विल बी द नॉर्मल, इलेक्ट्रॉन एंड. ओके एंड ये जब
मूव करेगा ना, so that means it will have a centrifugal force mv square by r. So if we resolve this mv square by r into two components, this angle will be also theta. If we resolve these two components, this will be one component, this will be another component. This will be mv square by r cos theta and this will be mv square by r sin theta. So actually यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, विदाउट फ्रिक्शन है, तो अगर अच्छे से फर्स्ट से प्रोपोर्शन दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू, अदरवाइज क्या होगा, ये अगर ज्यादा हो गया तो ये स्किप करेगा. ओके, सो क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा. यहाँ से mm कैंसिल हो गया, सो v स्क्वायर बाय r इक्वल टू g tan थीटा. तो हम लोग tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan थीटा इज नथिंग बट v स्क्वायर. अच्छा, हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, हम थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है. So tan theta equal to v square by gr. What is v? V is given as how much? 10 meter per second means 100. 10 square means 100 होगा. Next g means 10. What is the radius? 50. So if you calculate this, you will get tan theta equal to 1 by 5 and theta equal to tan inverse 1 by 5. So option A is the correct answer. Next. सो यहाँ पे क्या गिवन है कि देयर आर 3 डायोड्स D1 D2 D3. अच्छा, विड्थ्स गिवन है. अच्छा, पहले तो देखना है इसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स बायस में है, ठीक है ना. ये पॉजिटिव निगेटिव. सो ये डायोड क्या होगा, डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 यहाँ पे तो कोई बायस ही नहीं है, ये होगा नो बायस मींस ऑन ही नहीं होगा. नेक्स्ट डायोड 3 विल बी रिवर्स बायस, ठीक है, रिवर्स बायस. और हमको पता है कि इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन इसका विड्थ सबसे मिनिमम होता है एंड इफ डायोड इज इन रिवर्स बायस उसका विड्थ सबसे मैक्सिमम होता है. सो ये डायोड इसका विड्थ W3 है, इसका है W1 और मिडिल रोल का कितना है W2. सो जो रिवर्स बायस होगा उसका विड्थ सबसे ज्यादा होगा एंड देन द नो बायस कंडीशन W2 एंड देन फॉरवर्ड बायस में सबसे मिनिमम होगा फॉरवर्ड बायस. तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन विल बी 3 to 1. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. यस, आई थिंक 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the following table represents the. अच्छा, ये तो डायरेक्टली बहुत सिंपल क्वेश्चन है. माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर व्हाट, इट इज वार्मिंग द फूड. ओके, सो P के लिए 2 आ जाएगा. नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा कि रेडियो वेव AM, उसमें हम लोग करते हैं. सो S का आ जाएगा कितना, S का आएगा 3. नेक्स्ट उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस हम लोग किस लिए यूज करते हैं, फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर. सो UV रेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर. दैट मींस Q का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड देन गामा रेस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर सेल्स. सो इसीलिए R का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है. सो P2 Q1 R4 S3. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, ए बॉब ऑफ मास दिस हैंगिंग ऑन दिस सो ऑफ लेंथ, ये लेंथ गिवन है 10 मीटर. ओके, सो अच्छा, दिस इज मूविंग, दोनों का मास कितना है, m है, इसका भी मास m है. तो इनिशियली दिस इज द इनिशियल केस एंड इफ द बॉल स्ट्राइक्स हियर देन इट विल गो लाइक दिस. तो फाइनल, इफ आई मेक द फाइनल डायग्राम, क्या होगा, फाइनल डायग्राम विल बी लाइक दिस. सो दिस विल बी द फाइनल पोजीशन. ओके, तो फाइनल पोजीशन में आ गया तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे. सो एंड दिस हाइट इज गिवन एज h, हमको ये हाइट कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे. सो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, Ki प्लस Ui इक्वल टू Kf प्लस UF. अच्छा, इनिशियली मींस हम लोग सबसे लोएस्ट वाला पॉइंट को हम लोग रेफरेंस ले लेंगे. तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0. रेफरेंस, तो उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 0 ले लेंगे. अच्छा, सो सी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ बॉडी A इज मूविंग ओनली, सो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास कितना है, मास इज m इनटू व्हाट इज वेलोसिटी 10 स्क्वायर. ओके, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का कितना है, 0 है. ओके, एंड देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, फाइनल जब बॉडी द बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर से वो रिटर्न जब करेगा ना, जहाँ पे टर्निंग लेता है वहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना 0 हो जाएगा. सो एट फाइनल पोजीशन उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे वेलोसिटी विल बिकम 0. सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 प्लस व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट mg into h. ओके, सो फ्रॉम हियर हाफ m into 100 equal to m. What is the value of d? G is given as 10 height. So m cancel. So 100 को 10 से cancel करोगे, यहाँ पे 10 रह जाएगा, तो 10 by 2 will be 5. So h will be 5. So 5 meter. So answer will be option 3. And the last question is, an ideal gas is made of polyatomic molecules. अच्छा, each of molecules has 3 translation. अच्छा,
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 है एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है दिस इज ऑल्सो 3 एंड कितना एंड इट हैज कितना f दिस इज क्वेश्चन f है ठीक है ना एंड इट हैज f वाइब्रेशनल मोड्स अच्छा any vibrational mode have two types of degrees of freedom that is kinetic degrees of freedom and potential energy degrees of freedom so vibrational mode अगर f होगा so उसमें vibrational degrees of freedom कितना होगा vibrational degrees of freedom will be 2f होगा so now we will use the concept of this कि total degrees of freedom is nothing but 2 by gamma minus 1 this is for polyatomic molecule yes okay and so total कितना है 3 translational 3 vibrational 3 rotational and vibrational कितना होगा 2f because f modes present है ठीक है so इसलिए 2 times होगा equal to what is gamma is nothing but cp by cv is known as gamma and it is given as 8 by 7 so gamma का वैल्यू कितना है 8 by 7 minus 1 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा 3 plus 3 6 होगा so 6 plus 2f equal to 2 by ये होगा कितना so 2 ये एलसीएम लोगे तो 1 by 7 हो जाएगा so एक्चुअली होगा 6 plus 2f equal to 14 तो यहाँ से 2f आ जाएगा 8 so f equal to आएगा 4 so answer option A so this is how we have solved all the questions the 2026 NEET paper is very good level of paper although यहाँ पे time limit बहुत ज़्यादा लगेगा physics में ठीक है but the question paper is very good level so thank you class